بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، پہاڑوں اور سنہری ریت کے درمیان ایک بستی آباد تھی جسے لوگ نور محل کہتے تھے۔ یہ بستی باہر سے جتنی خوبصورت لگتی تھی اندر سے اتنی ہی خوفزدہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں کی شہزادی ماہین اپنے سخت مزاج اور غرور کی وجہ سے پورے شہر میں مشہور تھی۔ محل کے نوکر اس کے قدموں کی آواز سنتے ہی راستہ چھوڑ دیتے اور بازار والے اس کے گزرنے سے پہلے اپنی دکانیں سیدھی کرنے لگتے تھے۔ دوسری طرف اسی شہر کے ایک پرانے کونے میں ایک نوجوان کاریگر رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ وہ جوتے بناتا تھا مگر اس کی اصل پہچان اس کی ایمانداری تھی۔ سلیم کی چھوٹی سی دکان میں ایک لکڑی کا تخت، دھاگوں کی چند ریلیں اور ایک پرانا چراغ رکھا تھا، لیکن اس کے اوپر ایک سکون سا رہتا تھا۔ اگر کوئی غریب اس کے پاس پھٹے جوتے لے آتا اور پیسے نہ ہوتے تو وہ ہنس کر کہتا، رزق دینے والا اوپر والا ہے، تم فکر مت کرو۔ اسی وجہ سے پورا شہر اس کی عزت کرتا تھا۔ ایک صبح اچانک خبر آئی کہ شہزادی ماہین بازار آنے والی ہے۔ فوری بازار میں ہلچل مچ گئی۔ سپاہی آگے آگے راستہ صاف کرتے جا رہے تھے اور لوگ دکانوں کے اندر جانے لگے، مگر سلیم اپنی دکان میں خاموشی سے ایک بوڑھے آدمی کے جوتے سی رہا تھا، جیسے اسے کسی بات کی پرواہ ہی نہ ہو۔ جب شہزادی وہاں پہنچی تو اس کی نظر سلیم پر جا رکی۔ وہ حیران ہوئی کہ پورا شہر اس سے خوف کھاتا ہے مگر یہ نوجوان سکون سے اپنا کام کیے جا رہا ہے۔ اس نے فوری اپنا قافلہ رکوایا اور ایک خادمن کو حکم دیا، اس کاریگر کو ہمارے سامنے لاؤ۔ سلیم آرام سے اٹھا، ہاتھ صاف کیے اور شہزادی کے سامنے جا کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ ماہین نے اسے غور سے دیکھا اور سرد لہجے میں پوچھا، تم ہمیں دیکھ کر گھبراتے کیوں نہیں؟ سلیم نے نہایت سکون سے جواب دیا، جو سچائی کے ساتھ جیتا ہے وہ انسانوں سے نہیں ڈرتا۔ یہ جواب سن کر آس پاس کھڑے سپاہی بھی حیران رہ گئے۔ شہزادی کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ اس نے تنسا انداز میں کہا، لگتا ہے تمہیں اپنی زبان پر بہت غرور ہے۔ پھر اس نے فوری حکم سنایا، کل صبح ہمارے لیے ایسے شاہی جوتے تیار کرو جن پر سونے کی کڑائی اور قیمتی پتھر لگے ہوں، ورنہ تمہیں قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سن کر بازار میں خاموشی چھا گئی۔ سب جانتے تھے کہ ایک غریب کاریگر کے لیے یہ ناممکن کام تھا، مگر سلیم نے گھبرانے کے بجائے صرف اتنا کہا، میں کوشش کروں گا۔ شہزادی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ واپس محل چلی گئی۔ اسے یقین تھا کہ اگلے دن یہ نوجوان اس کے سامنے بے بس کھڑا ہوگا۔ ادھر سلیم رات گئے تک اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں بیٹھا سوچتا رہا۔ اس کے پاس نہ سونا تھا نہ قیمتی پتھر، مگر پھر بھی اس کے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ آخرکار اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آہستہ سے کہا، یہ میرے رب، مجھے جھوٹ اور ذلت سے بچا لینا۔ رات بھر جاگنے اور دعا کرنے کے بعد سلیم نے سوچ لیا تھا کہ وہ جھوٹ کا سہارا نہیں لے گا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ صبح ہونے سے پہلے وہ اپنے پرانے استاد حامد کے گھر پہنچا۔ استاد حامد کبھی شاہی محلوں کے لیے نفیس کام کیا کرتے تھے، مگر اب بڑھاپے کی وجہ سے خاموش زندگی گزار رہے تھے۔ سلیم نے انہیں ساری بات بتائی تو بوڑھے استاد کچھ دیر خاموش رہے، پھر ایک لکڑی کا صندوق کھول کر اس کے سامنے چند چمکدار پتھر اور سنہری دھاگے رکھ دیے۔ سلیم حیران ہو کر بولا، استاد جی یہ تو قیمتی لگ رہے ہیں۔ بوڑھے نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دور سے ہر چمک سونا نہیں ہوتی بیٹے، مگر اصل قیمت انسان کی نیت کی ہوتی ہے۔ سلیم پوری رات انہی چیزوں سے جوتے تیار کرتا رہا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے مگر دل مسلسل دعا کر رہا تھا۔ فجر کے وقت جوتے تیار ہوئے۔ وہ واقعی شاہی لگ رہے تھے۔ ان پر کی گئی کڑائی صبح کی روشنی میں چمک رہی تھی اور پتھر ایسے لگ رہے تھے جیسے اصلی جواہرات ہوں۔ بازار کھلنے سے پہلے ہی محل کے سپاہی سلیم کو لینے آ گئے۔ جب وہ شاہی دربار میں پہنچا تو ہر طرف خاموشی تھی۔ شہزادی ماہین اونچے تخت پر بیٹھی تھی اور دربار کے لوگ تجسس سے اس غریب کاریگر کو دیکھ رہے تھے۔ سلیم نے ادب سے جوتے پیش کیے۔ ماہین نے جیسے ہی انہیں دیکھا اس کی آنکھوں میں حیرت ابھر آئی۔ اس نے جوتے ہاتھ میں لے کر ہر طرف سے غور سے دیکھے اور پہلی بار اس کے اوپر تعریف جیسا تاثر آیا۔ دربار میں کھڑے وزیر بھی دھیرے دھیرے سر ہلانے لگے۔ چند لمحوں بعد شہزادی نے سرد لہجے میں پوچھا، یہ واقعی سونے اور قیمتی پتھروں سے بنے ہیں؟ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ سب کی نظریں سلیم پر تھیں۔ اگر وہ ہاں کہہ دیتا تو شاید اسے انعام مل جاتا، مگر سلیم نے سکون سے جواب دیا، نہیں شہزادی، یہ اصلی سونا اور ہیرے نہیں ہیں۔ جیسے ہی یہ الفاظ نکلے دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔
शहजादी गुस्से से सुर्ख हो गई। वो तख्त से खड़ी हुई और चीख कर बोली, तुमने हमारी तौहीन की है। सलीम ने नजरें नीचे किए बगैर जवाब दिया, मैं चाहता तो खामोश रह सकता था, मगर झूठ बोलकर अपनी रूह को बोझ नहीं देना चाहता था। माहीन ने गुस्से में सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे फौरी कैद खाने में डाल दो। सिपाही सलीम को पकड़ कर ले गए, मगर हैरत की बात यह थी कि इसके ऊपर खौफ नहीं था। वो खामोशी से ऊपर वाले का नाम लेता हुआ अंधेरे कैद खाने में गया। उधर रात के वक्त शहजादी ने वो जूते पहनने की कोशिश की, मगर जैसे ही इसने चंद कदम चलने चाहे, इसके दिल में अजीब बेकरारी उतरने लगी। इसे महसूस हुआ जैसे महल की सारी चमक अचानक बेमनी हो गई हो। वो फौरी रुक गई। बार बार सलीम की आवाज इसके जहन में गूंज रही थी, झूठ बोलकर अपनी रूह को बोझ नहीं देना चाहता था। पहली बार किसी ने इसके सामने डरने के बजाय सच बोलने की हिम्मत की थी, और यही बात इसे पूरी रात सोने नहीं दे रही थी। अगली सुबह महल का माहौल अजीब खामोश था। शहजादी माहीन रात भर ना सो सकी थी। बार बार उसके जहन में सलीम का पुरसुकून अंदाज आता और फिर वही अल्फाज गूंजने लगते, सच इंसान को हल्का रखता है। दूसरी तरफ कैद खाने की ठंडी दीवारों के दरमियान भी सलीम सुकून से बैठा था। कैद खाना तारीक, नम और खौफनाक था, मगर वो वहां भी बेकरार नहीं था। सुबह के वक्त इसने वही नमाज अदा की और खामोशी से दुआ मांगने लगा। कैद खाने का बूढ़ा मुहाफिज ये सब हैरत से देख रहा था। इसने अपनी पूरी जिंदगी में कई कैदी देखे थे, मगर ऐसा इंसान कभी नहीं देखा था जो सजा के बाद भी मुतमईन बैठा हो। उधर महल में शहजादी ने अपनी खास खादमा नाला से पूछा, वो कारीगर डरा हुआ तो नहीं था? नायला ने धीरे से जवाब दिया, नहीं शहजादी, वो तो ऐसे बैठा था जैसे कैद में नहीं, अपने घर में हो। ये सुनकर माहीन मजीद परेशान हो गई। इसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद ताकत हर इंसान को दबा नहीं सकती। इसी दिन दोपहर के वक्त शहर में एक और वाकया पेश आया। एक बूढ़ी औरत महल के दरवाजे पर आई। इसके कपड़े गिर्द से भरे हुए थे और वो बुरी तरह रो रही थी। इसने सिपाहियों से कहा कि इसके बेटे को शहर के अमीर सौदागर ने झूठे इल्जाम में कैद करवा दिया है और अब उसके पास इंसाफ मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मगर दरबानों ने इसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इत्तेफाक से शहजादी ऊपर वाली खिड़की से ये सब देख रही थी। पहले तो इसने हमेशा की तरह नजरअंदाज करना चाहा, मगर अचानक इसे सलीम की बात याद आ गई। चंद लम्हे वो खामोश खड़ी रही, फिर फौरी हुक्म दिया कि इस औरत को अंदर लाया जाए। पूरा महल हैरान रह गया। वजह यह थी कि माहीन ने इससे पहले कभी किसी गरीब की फरियाद नहीं सुनी थी। बूढ़ी औरत कांपते हुए दरबार में आई और रोते रोते अपनी कहानी सुनाने लगी। शहजादी ने फौरी सिपाहियों को तहकीक का हुक्म दिया। शाम तक हकीकत सामने आ गई कि सौदागर वाकई झूठ बोल रहा था। शहजादी ने गुस्से में हुक्म दिया कि बूढ़ी औरत के बेटे को फौरी आजाद किया जाए और सौदागर से जुर्माना लिया जाए। जब वो बूढ़ी औरत दुआएं देती हुई महल से वापस जा रही थी तो माहीन काफी देर तक खामोश बैठी रही। इसके दिल में अजीब सी बेकरारी थी, मगर इस बार ये बेकरारी बुरी नहीं लग रही थी, जैसे इसके अंदर कोई बंद दरवाजा धीरे धीरे खिल रहा हो। रात के वक्त इसने अचानक हुक्म दिया, सलीम को कल सुबह दरबार में पेश किया जाए। खादमन हैरान रह गई। सबको यकीन था कि शहजादी अब इस कारीगर को सख्त सजा देगी, मगर माहीन के ऊपर गुस्से के बजाय गहरी सोच नजर आ रही थी। अगली सुबह जब सलीम को कैद खाने से निकाला गया तो सिपाहियों को यकीन था कि आज इसे मजीद सख्त सजा मिलने वाली है, मगर सलीम पहले की तरह पुरसुकून था। वो खामोशी से दरबार में पहुंचा और अदब से खड़ा हो गया। आज दरबार का माहौल पहले से मुख्तलिफ था। शहजादी माहीन तख्त पर जरूर बैठी थी, मगर उसके ऊपर की सख्ती पहले जैसी नहीं रही थी। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर इसने आहिस्ता से पूछा, तुम कैद में भी खौफजदा क्यों नहीं हुए? सलीम ने सुकून से जवाब दिया, इंसान का सबसे बड़ा सुकून सच्चाई होती है। जिसके दिल पर झूठ का बोझ ना हो, इसे दीवारें भी कैद नहीं कर सकती। दरबार में फिर खामोशी छा गई। माहीन ने पहली बार महसूस किया कि ये नौजवान सिर्फ बातें नहीं करता, वाकई उन पर यकीन भी रखता है। कुछ देर बाद इसने हुक्म दिया, सलीम को आजाद कर दिया जाए। ये सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। सिपाहियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। शहजादी कभी इतनी जल्दी अपना इरादा नहीं बदलती थी। सलीम ने खामोशी से सर नीचे किया और वापस अपनी दुकान की तरफ आ गया।
मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब शहर में एक नई सरगोशी गर्दिश करने लगी थी। लोग कहने लगे कि एक गरीब कारीगर ने शहजादी के दिल पर असर डाल दिया है। उधर महल में भी वजीर और दरबारी इस तब्दीली से खुश नहीं थे, खास तौर पर वजीर आजम का बेटा फरीद मिर्जा, जो हमेशा से शहजादी से शादी का ख्वाब देखता था। फरीद ज़ाहिरी तौर पर निहायत नफीस और मुहज़्ज़िब लगता था, मगर हकीकत में वो मगरूर और हसद करने वाला शख्स था। जब इसे मालूम हुआ कि शहजादी एक मामूली कारीगर से बातें करने लगी है, तो उसके अंदर गुस्सा भर गया। इसी शाम उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया, इस सलीम पर नजर रखो, मुझे इसकी हर हरकत की खबर चाहिए। दूसरी तरफ सलीम अपनी मामूल की जिंदगी में वापस आ गया। वो फिर से गरीब लोगों के जूते ठीक करने लगा, मगर अब लोग इसे पहले से ज्यादा इज्जत देने लगे थे। एक दिन शाम के वक्त जब बाजार बंद होने वाला था, एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ इसकी दुकान के पास आया। इसके पांव जख्मी थे और उसकी चप्पल टूट गई थी। सलीम फौरी इसे अंदर ले आया, इसके जख्म साफ किए और नई चप्पल तैयार करके इसके पांव में पहना दी। बच्चा खुशी से हंसने लगा। इत्तेफाक से इसी वक्त शहजादी का काफिला वहां से गुजर रहा था। माहीन ने पर्दे के पीछे से यह मंजर देखा। वो हैरत से सलीम को देखती रही। इसने महसूस किया कि यह शख्स हर अच्छा काम ऐसे करता है जैसे ये इसकी आदत हो, दिखावा नहीं। महल वापस जाकर भी वो इसी मंजर के बारे में सोचती रही। पहली बार इसे अपनी पुरानी जिंदगी खाली महसूस होने लगी। उधर फरीद मिर्जा दौर खड़ा ये सब देख रहा था। इसकी आंखों में हसद साफ नजर आ रहा था। इसने गुस्से से मुट्ठियां भींच लें और आहिस्ता से कहा, मोची, मेरे रास्ते में नहीं। ये कहानी अब ज्यादा देर नहीं चलने वाली। शहर में धीरे धीरे ये बात गर्दिश करने लगी कि शहजादी माहीन बदल रही है, मगर किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस तब्दीली के पीछे असल वजह सलीम है। दूसरी तरफ फरीद मिर्जा के दिल में हसद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो जानता था कि अगर सलीम इसी तरह लोगों के दिल जीतता रहा तो एक दिन शहजादी भी इस पर मुकम्मल एतमाद करने लगेगी। इसी हसद में इसने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। एक रात जब बाजार बंद हो गया था और सलीम अपनी दुकान बंद कर रहा था, चंद निकाब पोश आदमी खामोशी से इसकी दुकान के करीब पहुंचे। उन्होंने अचानक दुकान में आग लगा दी और तारीकी में गायब हो गए। चंद ही लम्हों में आग ने पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। लकड़ी का तख्त, औजार, चमड़े के टुकड़े सब जलने लगा। आसपास के लोग शोर सुनकर बाहर निकल आए। कोई पानी ला रहा था, कोई आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। सलीम भी भागता हुआ वहां पहुंचा, मगर तब तक बहुत देर हो गई थी। इसकी बरसों की मेहनत राख बन रही थी। लोग सोच रहे थे कि शायद अब वो टूट जाएगा, मगर हैरत की बात यह थी कि सलीम खामोश खड़ा सिर्फ आग को देखता रहा। फिर इसने आहिस्ता से कहा, शुक्र है मालिक, जाने महफूज रही। ये सुनकर लोगों की आंखें भर आईं। सुबह होते ही यह खबर महल तक पहुंच गई। शहजादी माहीन फौरी समझ गई कि यह काम आम आदमी का नहीं हो सकता। इसके दिल में फौरी फरीद मिर्जा का ख्याल आया। वो गुस्से में सीधी इसके पास पहुंची और सख्त लहजे में बोली, अगर ये सब तुमने किया है तो याद रखो, जुल्म ज्यादा देर नहीं छुपता। फरीद ने हंसकर खुद को बेगुनाह जाहिर करने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों की घबराहट सब बता रही थी। उधर सलीम जलती हुई दुकान की राख साफ कर रहा था। तभी चंद गरीब लोग उसके पास आए। किसी ने इसे औजार दिए, किसी ने लकड़ी और किसी ने थोड़े से सके। एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, बेटा, तुमने हमेशा सबकी मदद की है, आज हमें तुम्हारा साथ देना है। ये देखकर सलीम की आंखें नम हो गईं। इसी लम्हे महल से शाही गाड़ी बाजार में आकर रुकी। सब हैरान रह गए, क्योंकि पहली बार शहजादी खुद गरीबों की बस्ती में आई थी। माहीन खामोशी से जली हुई दुकान को देखती रही। फिर इसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, आज ही ये दुकान दोबारा बननी चाहिए, पहले से बेहतर। बाजार में खड़े लोग एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। सलीम ने धीरे से कहा, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। मगर शहजादी ने पहली बार नर्म लहजे में जवाब दिया, कभी कभी इंसान को अपनी गलतियां बाद में समझ आती है। सलीम खामोश हो गया, लेकिन वहां खड़ा फरीद मिर्जा गुस्से से ये सब देख रहा था। इसे महसूस हो रहा था कि सलीम को खत्म करने के बजाय वो इसे और मजबूत कर बैठा है। अगले चंद दिनों में सलीम की नई दुकान पहले से ज्यादा
खूबसूरत बन गई, मगर अब इसकी असल पहचान उसकी कारीगरी नहीं, इसका किरदार बन गया था। पूरे शहर में लोग उसकी ईमानदारी और सब्र की मिसालें देने लगे थे। दूसरी तरफ शहजादी माहीन भी बदल गई थी। अब वो महल के दरवाजे गरीबों के लिए खोलने लगी थी, बीमारों के लिए दवाएं भिजवाती और लोगों की बात खुद सुनने लगी थी। शहर के लोग हैरान थे कि जो शहजादी कभी किसी की फरियाद नहीं सुनती थी, आज वही सबके लिए आसानियां पैदा कर रही है। मगर फरीद मिर्जा अभी भी खामोश नहीं बैठा था। हसद ने इसे अंधा कर दिया था। इसने आखिरी बार सलीम को रास्ते से हटाने का इरादा किया। एक रात इसने चंद सिपाहियों को रिश्वत देकर सलीम पर शाही खजाना चोरी करने का इल्जाम लगवा दिया। अगली सुबह सिपाही अचानक सलीम की दुकान पर पहुंचे और इसे गिरफ्तार कर लिया। पूरा बाजार हैरान रह गया। लोग चीखने लगे कि सलीम ऐसा नहीं कर सकता, मगर सिपाही इसे जबरदस्ती महल ले गए। दरबार में फरीद मिर्जा ने झूठा सबूत पेश किया और कहा यह शख्स शुरू से सबको धोखा दे रहा था। बादशाह भी कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गए। उधर शहजादी माहीन मुसलसल सलीम को देख रही थी। हैरत की बात यह थी कि इस मुश्किल वक्त में भी इसके ऊपर वही सुकून था। माहीन ने धीरे से पूछा, अगर तुम बेगुनाह हो तो खौफजदा क्यों नहीं? सलीम ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, क्योंकि सच को वक्त के अलावा किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। इसी दौरान एक बूढ़ा सिपाही आगे बढ़ा। वो वही मुहाफिज था जिसने सलीम को कैद खाने में देखा था। इसने कांपती आवाज में सच बयान कर दिया कि फरीद मिर्जा ने ही सिपाहियों को रिश्वत दी थी। ये सुनते ही पूरे दरबार में हलचल मच गई। बादशाह गुस्से से खड़े हो गए और फरीद मिर्जा का रंग उड़ गया। चंद ही लम्हों में हकीकत सबके सामने आ गई थी। बादशाह ने फौरी हुक्म दिया कि फरीद मिर्जा को शहर से निकाल दिया जाए। सिपाही इसे ले गए। वो गुस्से और जिल्लत से चीखता रह गया। इसके जाने के बाद दरबार में अजीब खामोशी छा गई। फिर बादशाह धीरे धीरे सलीम के करीब आए और बोले, एक गरीब मोची ने आज हमें सच्चाई, सब्र और इंसानियत का असल मतलब सिखा दिया। इसके बाद उन्होंने सबके सामने ऐलान किया कि आज से शहर में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा और हर मजलूम की बात सुनी जाएगी। लोगों के ऊपर खुशी तारी हो गई। उधर शहजादी माहीन की आंखों में नमी थी। वो सलीम की तरफ देखकर धीरे से बोली, तुमने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, तुमने मुझे भी बदल दिया। सलीम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, इंसान का दिल बदल जाए तो पूरी दुनिया बदलने लगती है। इस दिन के बाद नूर महल वाकई रोशनियों का शहर बन गया। लोग कहते थे कि एक गरीब मोची की सच्चाई ने वो काम कर दिखाया जो ताकत और दौलत कभी ना कर सके। इस कहानी का सबक यह है कि सच्चाई और ईमानदारी इंसान को हर मुश्किल में मजबूत रखती है। जुल्म और झूठ कुछ वक्त के लिए कामयाब जरूर लगते हैं, मगर आखिरकार जीत हमेशा सच की होती है। जो इंसान सब्र और अच्छे किरदार का साथ नहीं छोड़ता, एक दिन वही लोगों के दिल जीत लेता है।